Now this is series 2, and here we have a workshop for you where we are going to explore your personality type and students' learning style. Today is 19 September 2020, and you're having this workshop at the moment. Uh, this is not the only workshop that we have. We have free web-based teaching and learning platforms also that is coming your way next. Righty. Let's talk about today's presentation. Today's trainer is Ms. Afroz Anis, a trained trainer. She's MSc in Physics, PhD. She's certified international type-based teaching by EOP in collaboration with Institute of Type Development, Australia. Her area of expertise are physics, mathematics, robotics, and STEM education. Right, G. So as I've told you that on 26th September, we have our next workshop that is free web-based teaching and learning platforms. Right, but right now, over to Mr. Afroz Anis. Please start. Hello. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Okay, Bismillah Rahman Rahim. Today our topic is explore your personality type and students' learning style. And I will start my session with the quote of the Sukrat. And according him, the thing Okay, लेकिन हम सारी जिंदगी करते क्या हैं, सिर्फ दूसरों को जानते हैं, दूसरों को एक्सप्लोर करते हैं. कभी हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम खुद क्या हैं, हमारी अपनी स्किल्स क्या हैं. हमें अपने खुद को जानना है, अपने खुद को पहचानना है, और इसके लिए आज हम एक छोटी सी कोशिश करेंगे. एक वो वे या वो टेक्निक आज मैं आपसे शेयर करूंगी जिसकी बेस पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, कुछ ना कुछ अपने आप को जान सकें. और जब आप अपने आप को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, तो अपने आप को, अपनी स्किल्स को पहचानेंगे, तो अपने आप को सक्सेस पे उस लेवल पे लेके जाएंगे जिसके लिए अल्लाह ने, खुदा ने हमें बनाया है. और उसके बाद जब हम अपने आप को जानेंगे तो अपने इर्द-गिर्द लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को भी जान जाएंगे. So let's start with the picture. Okay, ये एक आपको पिक्चर नजर आ रही है. This is the famous quote by the Albert Einstein. Right, as you can see on your screen, you've got this picture, and here we want you to reflect on it, whatever you understand from this picture. We would like you to use chat to tell us what your reflection is. Okay, share your views. आपको इस पिक्चर को देखते ही क्या चीज़ आपके माइंड में क्लिक करती है? जी सर, रिजवान. Right. So we are getting views, and there's some issue with the voice clarity, but then right, we're looking for answers, right? Right. I would like you to please respond. Right. Yeah, we're getting some responses. Hamid Khan says that not everyone is equal, and Mr. Abdul Waid says same teaching for those who can't understand. Right. So the system should be different. And then we've got Shakil Riaz who says that this is all about our education system. So these are the views that our participants have shared with us.
Thank you for your sharing your comments. ओके, थैंक यू सो मच। आपने जो जो अपने व्यूज शेयर किए, डेट्स वेल एंड गुड। अब यहाँ पर आप सबको नज़र आ गया है कि एजुकेशन सिस्टम इज़ यहाँ पर डिफरेंट आपके पास एनिमल्स हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि जब हर एक की स्किल्स अलग हैं, तो हर एक को हम एक ही सिस्टम से जज नहीं कर सकते हैं। सपोज अगर एक आपके पास पोइट है, एक राइटर है, तो मैं उससे इंजीनियरिंग का काम नहीं ले सकती। एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर से मैं राइटिंग का काम नहीं ले सकती। तो हमें उसकी बेस पे उसको जज करना है, और इसी के लिए जो है हमने यहाँ पर किस तरह करना है वो अब हमें यहाँ देखना होगा। Next. Okay, these are our content. First, we have introduction to type, personality type, discover yourself and your type. Then we have introduction to type preference, understanding the 4 sets of preferences. The first one, extroversion, introversion. The second, sensing, intuition. The third, thinking, feeling. The fourth one, judging and perceiving. And by these 4 sets of preferences, we can find the 16 personality types. And then we can understand the R types and our students' learning style. So let's have a look the background. असल में इसका बैकग्राउंड हमें ये देखना है कि बैकग्राउंड क्या है। ये टाइप को हम वैसे ही तो नहीं स्टडी कर रहे, ऑब्वियसली देयर इज अ बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड के लिए देयर इज अ योंग। ओके, योंग इज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट जिसने इस टाइप को इंडिकेट किया, टाइप के बारे में ऑब्जर्व किया। एंड आफ्टर दैट 2 वुमेन्स, मदर और डॉटर की टीम थी, कैथरीन बिग्स और इसाबेल ब्रिग्स। उसने टिल 40 इयर्स तक जो है वो इस पे वर्क किया, एंड दे एक्सपेंडेड द वर्क ऑफ योंग। और इसको एक्सपेंड करने का, इस पे इतना ज्यादा काम करने का मकसद क्या था, इसके पीछे रीजन क्या था? सो दीज आर द रीजन। ही बिलीव के difference between people are not random, instead they form pattern types। किस तरीके से लोगों से डील किया जा सकता है, लोगों को अंडरस्टैंड करते हुए उनकी हेल्प किस तरह की जा सकती है। अपनी ऑक्यूपेशन को सिलेक्शन में ये टाइप जान करके इजी हो जाता है कि इट इज इजी। जब आप टाइप जान लेंगे अपने आप को, तो आप ऑक्यूपेशन जो है वो अपने आप को सिलेक्ट करने के लिए आप ज्यादा बेटर जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड सोशल और वर्क एनवायरनमेंट आपका जो बेस्ट हो जाता है, सोशली आप जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और एक सोसाइटी में एक बहुत अच्छा जो है वो आप एक यूजफुल जो है वो मेंबर के तौर पर नजर आते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव, जब हम पर्सनैलिटी टाइप की हम बात कर रहे हैं, तो पर्सनैलिटी टाइप का हम थोड़ा सा इंट्रो भी करते हैं। तो मुझे अगर आप लोग बताएं कि विच 2 थिंग्स मेक्स पर्सनैलिटी। राइट जी, आप अपना रिस्पांस जो है वो चैट में लिख सकते हैं, एंड वी विल बी शेयरिंग इट विद एवरीवन। मिस्टर फरोज वांट्स टू नो कि कौन से 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पर्सनालिटी को फॉर्म करते हैं। So we are looking for your responses. Please respond in chat. Right जी, हमारे पास शकील रियाज कहते हैं कि जी एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ये 2 चीजें हैं जो कि पर्सनालिटी को फॉर्म करते हैं। Then we've got Abdul Wahid who says family system and education. Aisha Farhan says behavior and character. Then Muhammad Zakauddin says it's knowledge and attitude. Hamid Khan says it's character and behavior. Anam Zaka says behavior and attitude. So Mr. Froz, हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो ज़्यादा behavior, attitude पे है, फिर family system की बात हो रही है। Then Kaval says it's the way of talking and appearance. So this is something very interesting. है जो मैं आपसे यहाँ शेयर करूंगी। By the way, meanwhile Zora says behavior and attitude, and then we've got Noor who says it's attitude and behavior. So most of the time it's वो कह रहे हैं attitude और behavior को की बात वो कर रहे हैं। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यहाँ पर हम उसी एटीट्यूड और बिहेवियर को हम नेचर और नर्चरिंग का नाम दे रहे हैं। तो नेचर एंड नर्चर, दीज 2 थिंग्स मेक्स द पर्सनैलिटी। ये 2 चीजें जो है वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करती हैं। नेचर, द बेसिक और इनहेरेंट फीचर, the world within the skin, you can say that the qualities or something by inherit, okay,
and it is innate. And nurture is it's your upbringing. It refers to all the environmental variables and it can be changed. And the type, what is personality type की बात कर रहे हैं, so what is type? Type is innate, type non-judgmental, and it can be influenced. So type plus traits is equal to personality. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि what is the connection between the nature, nurture, type and traits. ट्रेड्स आपके पास क्या है कि ट्रेड्स जो आपकी अपब्रिंगिंग होती है, जो आपकी नर्चरिंग हो रही है, नर्चरिंग से जो भी आपके ट्रेड्स बनते हैं, वो ट्रेड्स ऑनेस्टी है, डिसऑनेस्टी है, क्यूरियोसिटी है, कुछ भी आपके ट्रेड्स बन सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द नर्चरिंग एंड नेचर. तो इनके बिटवीन कनेक्शन क्या है? सो दिस इज द कनेक्शन. नेचर इज एक्सप्लेन्ड बाय टाइप, ओके, एंड नर्चर एक्सप्लेन्स ट्रेड्स. आपके ट्रेड्स जो है उस वक्त बनेंगे जब आपकी जैसी नर्चरिंग होगी वैसे ही आपकी ट्रेड्स होंगी, वैसे ही आपके हैबिट्स बन जाएंगे. आपकी नर्चरिंग पे डिपेंड करेगा. और आपको पता है हमारा एनवायरनमेंट, हमारे पेरेंट्स और ऑब्वियसली वी टीचर्स, वी आर ऑल नर्चर. ओके, वी आर नर्चरर. नेचर इज एक्सप्लेन बाय टाइप. इट मींस जो टाइप आपकी है वो नेचर से ही लिंक करती है. एंड गुड नर्चर डिपेंड्स. गुड नर्चरिंग की अगर हम बात करें तो गुड नर्चरिंग किस चीज पे डिपेंड करता है? नर्चर बाय नेचर. ओके, नर्चर बाय नेचर. आप पहले नेचर को जानेंगे, यू नो द नेचर एंड देन नर्चरिंग. सपोज आपके पास वी हैव एंड टीचर इज आल्सो नर्चर. सपोज वी हैव एन एप्पल ट्री एंड वी हैव एन अ कोकोनट ट्री. ओके, अगर अब मुझे एक एप्पल ट्री की ग्रोथ करनी है या मुझे एप्पल चाहिए तो मुझे पता है कि इसकी टाइप एप्पल है. लेकिन अगर मैं इसकी ग्रोथ इस तरह कर दूं, जो वो चीजें मैं इनको दे दूं जो कि कोकोनट ट्री को चाहिए, तो क्या मुझे एप्पल ट्री में क्या मुझे एक अच्छा एप्पल मिलेगा? या एप्पल मिलेगा भी नहीं. और अगर एक कोकोनट ट्री को मैं वो चीजें रिक्वायरमेंट दे दूं इसकी नर्चरिंग करते वक्त, इसकी नर्चरिंग में एप्पल की तरह कर दूं, तो क्या मुझे यहाँ कोकोनट मिल सकता है? ऑब्वियसली नॉट. तो इट मीन्स फर्स्ट नो द नेचर, फर्स्ट नो द टाइप एंड देन नर्चरिंग. इसीलिए वी आर हेयर टू नो द टाइप. जब हम टाइप जानेंगे तभी तो हम उसकी उसी तरह नर्चरिंग करेंगे जिस तरीके से हम ये जानेंगे दिस इज एप्पल ट्री एंड दिस इज कोकोनट ट्री, तो उस लिहाज से हम उसकी नर्चरिंग करेंगे. So explore yourself, your type, and knowing yourself is a true power. And according to knowing yourself is the beginning of all wisdom, obviously. So we have four types of dichotomies. Dichotomies is the difference or contrast between the two opposite things. Like we have four preferences. The first one is energize. How we energize? By extrovert and introvert we feel energized. The second one is by sensing, intuition we gather information, and by thinking and feeling we make decision, and by judging and perceiving we approach life. So these are the four preferences. These are the four set of preferences. और इसी में हमें जो है वो चूज करना है कि what are preferences. The first one which we are going to discuss is energy. और energy हमें किससे मिलती है? या तो introvert feeling से या तो extrovert preference से. So extroversion, what is extroversion? Extroversion, who prefer extroversion like to on the outer world of the people and act. The simple is that the world outside the skin is extroversion. And the introversion, who prefer introversion like to focus on the inner world of ideas and experience, like the world inside the skin. So let's have a look. We have some characteristics associated with the extroversion and introversion. Like we have out in the world. Notice करते हैं लोगों को और चीजों को. जो extrovert होते हैं हमेशा जो है वो सोचे बगैर एक्ट कर जाते हैं, बोल जाते हैं, जल्दी लोगों को जान जाते हैं. तो ये एक्सट्रोवर्जन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट प्रेफरेंस करते हैं वो उनको लोगों में रहना पसंद है, पार्टीज पसंद है, गैदरिंग ज्यादा पसंद है, आप उनको ग्रुप स्टडी उनको ज्यादा पसंद है. तो अब आप डिसाइड करें क्या आप एक्सट्रोवर्जन हैं. एंड दिस वन आप ये देख सकते हैं कि एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन. इंट्रोवर्जन बी इन योर इनर वर्ल्ड, अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने आइडियाज और थॉट्स होते हैं, कुछ भी सोच बोलने से पहले और कुछ भी करने से पहले सोचते जरूर हैं.
लोगों में वार्म अप नहीं होते हैं, लोगों में इतना ज्यादा जो है वो उनको अच्छा नहीं लगता है, वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अब आप क्या देखें, आपको एक पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि एक आउट साइड जो है वो एरो है, एक और इनर साइड एरो है। तो इन साइड ऑब्वियसली ये मैंने कहा इंट्रोवर्जन है, आउटसाइड इज एक्सट्रोवर्जन। क्यों? क्योंकि ये जो भी आइडियाज इनके माइंड में आते हैं, कोई भी बात इनके माइंड में आती है, ये फौरन से एक्सप्रेस कर देते हैं, ये एक्सप्रेसिव बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो इंट्रोवर्जन है ये ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी चीजों को। आप अपने इर्द गिर्द भी देखें लोगों को, खुद को आप देखें कि आप जो है वो एक्सट्रोवर्ट में रहना अच्छा पसंद करते हैं या इंट्रोवर्ट में रहना पसंद करते हैं। और इसके अलावा इंट्रो और एक्सट्रो हमारी जो है लाइफ में चलता रहता है साथ साथ। कुछ स्किल्स हैं यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की, मेमोरी शार्प होती है। अच्छा, इंट्रोवर्ट आपके पास किसी एक टास्क पे जब काम करते हैं तो वो बहुत डीपली करते हैं, टास्क ओरिएंटेड होते हैं, ओके, प्लानिंग अच्छे करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर बहुत अच्छे होते हैं। एक्सट्रोवर्टेड न्यू इंफॉर्मेशन, एक ही वक्त में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और अप्लाई करते हैं, न्यू नॉलेज को अप्लाई करते हैं, अच्छे रिस्क भी लेते हैं। अच्छा, आप में से यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें ये लग रहा है कि या तो मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ या मैं इंट्रोवर्ट हूँ, या आपको लग रहा है मैं तो एक्सट्रोवर्ट भी हूँ और मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आपने अपने आप को जज करना है 24/7 की ऑब्जर्वेशन में। आपने आपको यहाँ जज करना है सिंस चाइल्डहुड टू टिल नाउ, कि आप बचपन से लेके अब तक आपकी प्रेफरेंस क्या रही है। आप एक्स्ट्रो में रहना पसंद थे या इंट्रो में रहना पसंद करते थे। इसके अलावा आपने ये भी जज करना है कि जब आपके पास सपोज चॉइस, क्योंकि देखिए जब हम एक किसी फील्ड में होते हैं तो वहां पर जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें फुलफिल करनी होती है। एज अ टीचर अगर मैं क्लास में इंट्रोवर्ट जाऊंगी तो मैं अपने आइडियाज कैसे शेयर करूंगी, मुझे वहां पर एक्स्ट्रो बनना पड़ेगा। ओके इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस आती है जहां पर हमें एक्स्ट्रो बनना पड़ता है, जहां पर हमें इंट्रो बनना पड़ता है। लेकिन आप इससे हटकर देखें कि आपको कहाँ ज्यादा मजा आता है। कुछ आपके पास की वर्ड्स भी हैं, जैसे एक्सट्रोवर्ट हमने कहा वैरायटी होती है, एक्टिव बहुत होते हैं, सोशल बहुत होते हैं, इनर वर्ल्ड में रहते हैं इंट्रोवर्जन। थिंक बिफोर, ये भी मैंने आपको बताया। तो अब अपने आप को आप बताएं कि आपको लगता है कि एक्सट्रोवर्जन है या आपको लगता है कि आप इंट्रोवर्जन है। आपने अपने आप को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हट के जज करना है। आपके पास अब एक कॉपी या पेंसिल होना चाहिए जिसमें आपने लिखना है आप ई हैं या आई हैं। आप मुझे बताइए कि आपने अपने आप को क्या जज किया। यहाँ कुछ इंट्रो वर्ड्स के आपको नजर आ रहे हैं, की वर्ड्स एंड यस। राइट जी, जिस तरह आप देख सकते हैं आपके सामने आ चुकी है चैट बॉक्स एक्टिविटी, और उसमें आपने करना क्या है, आपने गैस करना है कि आप इनमें से कौन से इंट्रोवर्ट हैं और कौन से एक्सट्रोवर्ट। एंड यू कैन सी अ स्टार स्टडेड लाइन जस्ट बिलो दैट, यू हैव गॉट शाहिद अफरीदी, यू गॉट वसीम अकरम एंड यू गॉट सरफराज अहमद। सो शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम और सरफराज अहमद को आपने करना क्या है, आपने इनको जो है टैग करना है whether they are extroverts or introverts. So I'm looking forward to your answers in the chat box. So please do that. आप किसको समझते हैं कि वो इंट्रोवर्ट है और किसको आप समझते हैं कि वो एक्सट्रोवर्ट है, उसका नाम लिखें और उसके आगे उसकी कैटेगरी लिख दें। Righty, so we are getting the answer. Hamid says Sarfraz is an introvert. Muhammad Ziakauddin says it's Shahid Afridi is extrovert. Hamid says Shahid is an extrovert. And Muna says Afridi obviously is an extrovert. So we are getting Wasim Akram also is an extrovert by Muhammad Ziakauddin. Bini says Sarfraz is an introvert. And then we got Shahid Afridi being like that. And Sarfraz is being considered by Zareen as an introvert. Wasim as an introvert. Shakil Riyaz also. Shahid Afridi is an extrovert. So most of the people, what they're saying is कि शाहिद अफरीदी जो है और वसीम अकरम जो है वो हमारे पास एक्सट्रोवर्ट्स हैं, जबकि सरफराज अहमद को लोग टैग कर रहे हैं एज एन इंट्रोवर्ट। So ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि why they are tagging him as an introvert. Miss Afroz, would you like to comment on it? जी सर रिजवान, आपका क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं, शाहिद अफरीदी एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट? आई थिंक जो शाहिद अफरीदी का जो पूरा कैरियर रहा है उसके अंदर जिस तरह से उन्होंने आउटस्पोकन है और अभी भी पॉलिटिक्स में काफी आउटस्पोकन है, तो जो आपने कैटेगरीज बताई हैं उस तरह से आई थिंक पीपल आर राइट दे सेइंग कॉलिंग हिम एन एक्सट्रोवर्ट एंड वसीम अकरम इज स्टिल डूइंग एड्स, राइट? सो maybe for that reason. But then Sarfraz Ahmed never spoke on him being out, so that's maybe that's why कि Sarfraz Ahmed को introvert कहा जा रहा है.
यस। right? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ इसीलिए हमने वर्ड यूज़ किया कैन यू गेस, क्योंकि हम कंप्लीटली तो किसी को जान नहीं सकते हैं। हमने यहाँ पर गेस करना है कि जो चीज़ें, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर डिस्क्राइब की हैं एक्सट्रोवर्ट की और इंट्रोवर्ट की, तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप ये जान जाएं कि आप सबसे पहले कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या आप इंट्रोवर्ट हैं। सबसे पहले तो आपने जज करना है, और उसके बाद इन सेलिब्रिटीज़ को जज करने का पर्पज़ यही है कि आप इनको अच्छी तरह, आप इन क्वालिटीज़ को अच्छी तरह जानकर इनको जब जज कर लेंगे तो फिर आप अपने आप को और इसके अलावा अपने स्टूडेंट्स को जान जाएंगे, अपने घर वालों को जान जाएंगे आप। तो यहाँ पर ठीक है, सरफराज अहमद हमें वाकई में ये इंट्रोवर्ट है, हमने जो इनको जो भी चीज़ें हमें सामने नज़र आती हैं हम उसकी बेस पे ही इसको जज कर सकते हैं। तो इट इज़ ओके अगर आपने अपने आप को जज कर लिया है, तो यहाँ पर आप एक काम करेंगे, कॉपी और पेंसिल लेंगे और वहाँ पर लिखेंगे आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप का फर्स्ट वर्ड आई या ई। आपने आई लिखना है या ई लिखना है, बिकॉज द 4 लेटर वर्ड्स मेक्स योर पर्सनैलिटी टाइप। द 4 लेटर, ओके, 4 अल्फ़ाबेट्स के बाद आपकी टाइप बन जाएगी, और वो हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और फिर देखते हैं कि किस तरीके से आपकी टाइप बनती है। Second one is dichotomy information, and we gather information by sensing and intuition. And what is sensing? Sensing, people prefer sensing, like to take information that is real, what is actually happening, okay? They prefer facts. Intuition, they prefer like to take information by seeing the big picture, focusing on the relationship and connection between facts. And we also have some characteristic by which you can easily judge yourself. Information you get from 5 senses. Practical, factual parts life के ज़्यादा देखते हैं ये, इनको जो है वो डिटेल चाहिए बिग पिक्चर से पहले। Here and now, अभी की बात करते हैं ये, ओके? ये आप देख सकते हैं 5 senses, through 5 senses they get information. While intuition, ओके, व्हाट इंफॉर्मेशन यू गेट मीन्स कौन सी इंफॉर्मेशन लेते हैं, पॉसिबिलिटीज पे, इमेजिनेशन पे ज़्यादा जो है वो इनका फोकस होता है। बिग पिक्चर बिफोर डिटेल, इनको पहले बिग पिक्चर चाहिए डिटेल से पहले। फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब सपोज अगर मैं बात करूं सेंसिंग की, के सेंसिंग 5 सेंसेस है। सपोज एज ए टीचर आप अपने क्लास में भी देखें कि आप जब ऑडियो वीडियो एड्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे उसको देख के लर्न कर लेते हैं ईजिली। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उसके बगैर भी अच्छा लर्न कर लेते हैं, उनको ऑडियो वीडियो की ज़रूरत नहीं होती है। कोई प्रैक्टिकल अगर आप उनको करके दिखाएंगे क्लास में या लेबोरेटरी में, तो उससे बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। कोई भी प्रैक्टिकल आप दिखा दें, आप कहते हैं कि जो है वो सोडियम क्लोराइड जो है वो आपके पास Na और Cl मिलता है, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन लेंगे और गैदर करेंगे और देर तक रखेंगे। दूसरी बात, अगर आप जो है, मैं अगर सिंपल से एक लॉ बताऊं, न्यूटन का 3rd लॉ है, टू एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। और इसके लिए मैं क्लास में एक जो है वो बॉल थ्रो करूं, ओके, वॉल पे, और वो मेरे पास वापस आ जाए, तो ये बच्चा देख रहा होगा इस एक्ट को थ्रू 5 सेंसेस कि ये हो रहा है, तो इस प्रैक्टिकल से वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा। जबकि इंट्यूशन वाले बच्चे को जब आप ये बात बता देंगे टू एवरी एक्शन एज एन अपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन, तो वो यहाँ पर ये बात समझ जाएगा कि ये थ्योरी है, ये लॉ जो भी आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो इजीली समझ जाएगा। तो हमें यही तो करना है, अपने बच्चों को जज करना है कि कौन सा बच्चा सेंसिंग है, कौन सा बच्चा इंट्यूशन है। कि अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो हमें उसको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना है, कुछ पिक्चर दिखानी है, ठीक है? और डिटेल बिफोर बिग पिक्चर है। अगर आप बता दें न्यूटन 3rd लॉ का जो है ना ये फायदा है, तो इंट्यूशन वाला बच्चा ये पूछता है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। सेंसिंग वाले बच्चे को आप डिटेल बता देंगे तो वो डिटेल से वो इजीली अंडरस्टैंड कर देगा। सेंसिंग और इंट्यूशन में आपके पास क्या है, जो सेंसिंग प्रेफरेंस लोग होते हैं वो पास्ट से लिंक करते हुए प्रेजेंट में रहते हैं, वो प्रेजेंट ओरिएंटेड होते हैं। एंड इंट्यूशन प्रेफरेंस द फ्यूचर ओरिएंटेड, वो प्रेजेंट से लिंक करते हुए वो फ्यूचर को जो है वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में रहते हैं, इमेजिनरी दुनिया में ज्यादा रहते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ मैं मेंशन करूँ फॉर इंट्यूशन, हमने कहा सेंसिंग 5 सेंसेस से जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो क्या इंट्यूशन 5 सेंसेस यूज नहीं करते? यस करते हैं, लेकिन
वो 5 सेंसेस यूज करते हुए अपना 6 सेंस यूज करते हैं। उनका 6 सेंस बहुत अच्छा होता है। उनके आप देखें, आपके इर्द गिर्द आप देखें, 6 सेंस बहुत लोगों का बहुत अच्छा होता है। इमेजिनरी दुनिया में बहुत ज्यादा रहते हैं, विजुअलाइज करते हैं चीजों को, जो है ना, विजुअलाइज कर लेते हैं। और फ्यूचर के बारे में कोई चीज आप कुछ भी बताएं तो वो सोच लेते हैं कि फ्यूचर में मुझे ये फायदा है, मुझे ये चीज करनी है। मैं एक इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, आप ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है। इंट्यूशन वाला बच्चा जो है वो ये सोचेगा कि इस इलेक्ट्रिसिटी को अब मैं कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप सेंसिंग और इंट्यूशन से रिलेटेड आप की वर्ड्स भी देख सकते हैं। प्रेजेंट, फ्यूचर, जैसे मैंने कहा कि ये कीप चेंजिंग इंट्यूशन में रहती है, वैरायटी ज्यादा होती है कि ये चेंज पसंद करते हैं। प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकली जो है वो चीजों को समझ जाते हैं। अच्छा, सेंसिंग वाले बच्चे के पास हाउ एंड व्हाट कांस क्वेश्चन होता है, जबकि इंट्यूशन वाले बच्चे के पास जो है ना वाई का होता है कि क्यों। अगर मैं उससे कहूँ कि ये दुनिया गोल है तो सेंसिंग वाला कहेगा ओके, लेकिन इंट्यूशन वाला बच्चा पूछेगा क्यों है ये। ओके, रियलिटी डिपेंड करते हैं फैक्ट्स को, जो है वो सेंसिंग वाला, जो भी सेंसिंग प्रेफरेंस लोग हैं वो रियलिटी की दुनिया में रहते हैं कि हाँ ये रियलिटी है, मैं रह रहा हूँ यहाँ पर। एक हमारा पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये रियलिटी है। इंट्यूशन इमेजिनरी के मुझे इसको किस तरह मोस्ट डेवलप कंट्री बनाना है, इंट्यूशन वाला ये सोचेगा। तो ये इंट्यूशन है। हमारे जितने जो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, वो मोस्टली एन होते हैं, जितने भी आपके पास जो प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं। कुछ हमारे पास जस्ट लाइक हमारे पास महातीर मोहम्मद, अगर मैं मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, बिल गेट्स की बात करूं, तो ये हमारे पास एन है। ओके, so now can you guess? Yes, sir, is one. सॉरी, या आप देख सकते हैं अपने पास कि आपने क्या करना है। या तो आपने अपने आप को कैटेगराइज करना है एज एस और एन, राइट। सो आपने ना सिर्फ ये करना है बल्कि आपने अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताना है कि वेदर दे आर एस और एन, एंड देन फिर आप उनको अकोमोडेट कैसे करोगे। अगर आपको पता चल गया है कि आपका स्टूडेंट जो है वो एस है या वो एन है, whether is that, so how are you going to accommodate that person? We are going to look for your answers in the chat box. पहले तो आप यही कैटेगराइज कर दें कि आप एस हैं या एन हैं, और क्या आप अपने स्टूडेंट्स को डिटरमिन करते हैं कि वो एस है या एन है। We are getting responses, but they're a little different. Yes. Right. Muhammad Zakauddin says he's N. Right. तो उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है. Miss Zareen Nishat says intuition. Right. Hamid Khan says he's S. Shakira says he's N. Binish says she's N, but she says that mostly people are N, right? Kaval says she's S. Faryal Taman says N. Nazia Taj says she's N. Noor says she's N. So, and then Adam says she's absolutely N. And then you got Zareen Nisha saying students are N mostly, right? So ये पहले भी हमारे पास इस तरह का कमेंट आया कि ज़्यादातर लोग N होते हैं. सारा हमें says she's S, and then Noor says sometimes के लोग N होते हैं. So मिस जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है वो ये आ रहा है कि ज़्यादातर वो अपने स्टूडेंट्स को भी N समझते हैं. एंड देन वो खुद भी कई लोगों ने कहा कि उनका रिस्पॉन्स है कि वो N है. तो कमिंग टू दैट पॉइंट कि आप अकोमोडेट कैसे करेंगे, आप उनको अपने स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कैसे करेंगे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर देम, दैट्स व्हाट वी आर आल्सो लुकिंग फॉर. कि अगर आपको पता है कि आपका स्टूडेंट N है, सो व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू फॉर देम. राइट जी, शकील राज को लगता है कि दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर S. Then Zareen says कि अगर उनके पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो she says that she do practical things for a student, right? So she's using more practical activities so that the students can understand more. Then we got Bini Shijaz. She said explain with experiments. That's right. कि वो उसको experiments के through explain करेंगी. Nadia says we do practical things for students. So वही बात है कि इन प्रैक्टिकलिटी की बात हो रही है, यानी कि फिजिकली परफॉर्म करने की बात हो रही है. मिस अफरोज, ये हमारे पास रिस्पॉन्सेज हैं. यस, बिल्कुल। ये सबने बहुत इसको जो है वो अंडरस्टैंड किया है और अपने अपने व्यूज शेयर किए हैं. इट्स गुड
कि आप अपने आप को कुछ कुछ जान रहे हैं और आज से फिर अपने स्टूडेंट्स को भी जानेंगे, एज अ पेरेंट आप अपने घर के बच्चों को भी जानेंगे, अपने जो है वो आप इर्द गिर्द जितने लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको भी जानेंगे। क्योंकि हम देखते हैं समटाइम्स, देखिए क्लास में ऐसा होता है कि कोई बच्चा आपसे बार बार पूछता है कि मिस हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, मिस हम ये क्या है। तो हम एज ए टीचर, बहुत सारे टीचर्स हैं, हम भी जिसमें शामिल है, कि हम थोड़ा इरिटेट फील करते हैं कि ये बार बार मुझे तंग करता है, बार बार क्लास को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो ऐसा नहीं है, आप इसे जानें कि वो बच्चा एन है, इसीलिए वो परेशान है। आप उसको जब नहीं बताएंगे कि ये हम क्यों कर रहे हैं, आप एक छोटे बच्चे को कहते हैं कि भाई सुबह और शाम जो है वो आपने ब्रश जो है वो क्लीन करना है, जूनियर सेक्शन में आप क्लीनिंग करवाते हैं, उसको बताते हैं कि ये क्लीन करना है, लेकिन जो एन बच्चा है वो कहेगा मैं क्यों करूं, इसके क्या फायदा है। तो आपको उधर वो बताना पड़ेगा ताकि आपका एस बच्चा भी सेटिस्फाई हो जाए और आपका एन बच्चा भी सेटिस्फाइड हो जाए कि मैं ये क्यों करने जा रहा हूँ और इसका क्या है। आप उसको पहले बिग पिक्चर बताएं डिटेल से पहले, और एस को आप स्टेप बताएं, वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा एस वाला बच्चा, उसको स्टेप के साथ लेके जाएंगे तो वो उसमें हैप्पी फील करेगा। और अपने आप को आपने जाना है, क्योंकि आपको अभी भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो ये समझ रहे होंगे कि मैं एस हूँ या एन हूँ। तो आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे जो है वो अपने आप को जज करें, क्योंकि यही वाली बात है, मैंने आपको कहा है कि अपने आप को प्रोफेशनली जज नहीं कीजिएगा, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल हमें वहां पर समटाइम्स एन बनना पड़ता है, समटाइम्स हमें एस बनना पड़ता है। लेकिन आपका प्रेफरेंस क्या है, मीन्स के द बिहेवियर वेयर यू फील हैप्पी एंड कंफर्ट, कहाँ पर आपका कंफर्ट जोन होता है जहाँ पर आपको ये अच्छा लगता है। ओके, दिस इज द सेकंड डाइकोटोमी व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। सो the third one is decision making. So by thinking and feeling we make decision. So what is thinking? The thinking people prefer to use thinking and decision making, like to look at the logical consequences of a choice or action. Logic पे जो है वो उनको ज़्यादा concerned होता है कि there must be logic. And the feeling, the people who prefer to use feeling in decision making like to consider what is important to them and to others involved, कि उनके लिए और दूसरों के लिए क्या important है। वो फीलिंग वाले लोग दूसरों को भी सोचते हैं। अब यहाँ पर हम फिर देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और फिर आप अपने आप को जज करें। ओके, थिंकिंग को हमने टी से जो है वो यहाँ पर डिनोट किया है। सो लॉजिक की बात करते हैं, रूल्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, इम्प्रूवमेंट की नीड देखते हैं कि कहाँ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा किस तरह नीड है, वहाँ पर उस पर देखते हैं और उस पर वो जो है वो स्ट्रिक हो जाते हैं। राइट और रॉन्ग को है वो ज़्यादा देखते हैं। फीलिंग प्रेफर करते हैं कि लोगों को अप्रिशिएट करते हैं कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज द बेस्ट चॉइस, क्या चॉइस बेटर हो सकती है। टेंशन को और उसको अवॉइड करते हैं। अच्छा, आप ये पिक्चर देखें, थिंकिंग में कह रहे हैं टीम मेक्स डिसीजन ऑब्जेक्टिवली, ओके, यूजिंग लॉजिक। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा ऊपर ये माइंड से सोचते हैं, जबकि फीलर जो है वो आपको हार्ट बना हो रहा होगा, वो दिल से सोचते हैं। सपोज आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है और आपको वहां पर जो है वो टी भी यूज कर सकते हैं और एफ भी, लेकिन अगर आपको चॉइस दे दी जाए कि आप टी बने या एफ, तो वहां पर आपकी चॉइस ये होगी। तो अगर आप वहां पर टी को प्रेफर करते हैं तो यू आर टी, और अगर आप एफ को प्रेफर करते हैं तो यू आर एफ। अब आप देखिए, मोस्टली जो बिजनेसमैन होते हैं वो टी होते हैं, क्योंकि अगर वो एफ बन जाएंगे, वो अगर लोगों को देखेंगे, लोगों का भला ज्यादा देखेंगे, अपना उनका बिजनेस तो फिर गया। तो हमें टी बनने के लिए, बिजनेसमैन अच्छा बनने के लिए जो है वो टी बनना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। कि थिंकिंग वाले लोग हैं, फीलिंग वाले लोग, उनमें एम्पैथी ज्यादा होती है, सिंपैथी ज्यादा होती है, ह्यूमैनिटी फैक्टर ज्यादा होता है। वो सिचुएशन पे देखते हैं। सपोज एज ए टीचर आप क्लास में देखें किसी बच्चे ने काम नहीं किया है या वट एवर, तो आप थोड़ा सा, अगर उसका कोई जेन्युइन रीजन है तो आप उसको थोड़ा मार्जिन दे देते हैं। लेकिन एक टीचर होता है, वो उसको जो है वो कहता है कि ये चीज है, अच्छा टाइम आपके पास है कि इतने टाइम पे आना है, इस टाइम पे ये चीज खत्म करनी है, क्लास के रूल रेगुलेशन है, ये फॉलो करना है। एक जो है वो कंट्री के रूल रेगुलेशन है, एक इंस्टीट्यूशन के ये रूल रेगुलेशन है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के, स्कूल है, ऑफिस है, कंपनीज है, आप उसके रूल्स रेगुलेशन को जब फॉलो करते हैं तो वही ज्यादा ऊपर जा रही होती है, वो ज्यादा सक्सेस ले रही होती है, क्योंकि हमें वहाँ टी बनना पड़ता है। सपोज मैं आपको बताऊं, अगर के मुझे कुछ दिनों पहले किसी ने मुझसे डिस्कस किया कि उसके हस्बैंड ने एक बिजनेस किया,
उसके बिजनेस में लेकिन उसको लॉस हो रहा था। तो मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों, उन्होंने कहा कि वो बिजनेस जो किया है उसने कोई शॉप ओपन की जिसमें लोग आते थे तो उनको वो चीज़ जो है वो कभी कभार जो है वो उनको वैसे ही दे देते थे कि ठीक है वो बाद में जो है वो अमाउंट उनको पे कर देगा या वट एवर इस तरह की चीज़। और उसने पूरा एक जो है ना एक उसका पूरा एक रजिस्टर तैयार हो गया जिसमें लोगों ने उनको पे करना था। तो मुझे वहां समझ आई कि वो चूंकि टी नहीं है इसलिए वो बिजनेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अब आपने सोचना है कि आपने क्या करना है। जितने अच्छे बिजनेसमैन, जितने अच्छे पॉलिटिशियन हैं, ये जितने भी अच्छे साइंटिस्ट हैं जो लॉजिकल रीजंस को देख रहे होते हैं वो टी हैं। एफ जितने सोशल वर्कर हैं, छीपा साहब है हमारे, एडी साहब है, इसके अलावा जो है वो आपका नेल्सन मैंडेला है, हेलन केलर है, ये सब अच्छे सोशल वर्कर हैं। अगर कोई सोशल वर्क करना चाहे और वो टी हो, जब आप अपने आप को जान जाएं तो आप ये सोचेंगे नहीं मुझे तो पैसा चाहिए तो मैं सोशल वर्क नहीं अच्छा बन सकता। तो वहां पर आपने खुद को ये समझना है कि मुझे एफ हूं मैं तो मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज मैं यहाँ मेंशन करूं कि जरूरी नहीं है कि अगर आप टी हैं या एफ हैं, आपकी लाइफ में दोनों फैक्टर रहते हैं। हर डायकोटोमी का के दोनों प्रेफरेंसेस आपकी लाइफ में रहते हैं। अब आपने उसको यूज करना होता है, लेकिन जहां पर आपको चॉइस मिल जाए और जहां आप उसको ज्यादा यूज करें वो आपकी प्रेफरेंस है। और एक और चीज मैं यहाँ मेंशन करूं कि अगर आप टी हैं और अगर आप कहेंगे कि मैं या फिर मैं आप एफ है, आप कहें मैं तो टी कभी बन ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है। चीजें डेवलप भी होती हैं। एज अ टीचर अगर मैं कहूँ कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ लेकिन मैं जब क्लास में जाती हूँ तो मैं एक्सट्रोवर्ट होती हूँ क्योंकि मैंने अपनी चीज को, अपनी प्रेफरेंस को डेवलप किया है। तो हमने अपनी चीजों को डेवलप भी करना होता है। जरूरी नहीं है कि ये चीज है तो मैं इस पे स्टिक हो जाऊं। और चीजें जब डेवलप हो जाती हैं तो चीजों में इंप्रूवमेंट आ जाती है। यहाँ पर भी कुछ कीवर्ड्स हैं जिसमें मैंने बताया, लॉजिक देखते हैं, ट्रुथ देखते हैं, जस्टिस है, टास्क ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होते हैं जो टी होते हैं, थिंकिंग वाले लोग। ये इनका कोई भी टास्क दे दिया जाए तो ये टास्क देख रहे होते हैं। वैल्यूज को, पर्सनल वैल्यूज को एफ वाले ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्लास में आप देखें बहुत सारे, ये पीपल ओरिएंटेड होते हैं। क्लास में देखिए बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एफ होते हैं। तो आप उनको अप्रिशिएट करें एज अ टीचर, एज अ पेरेंट। आप उनको घर पे, अगर आपका बच्चा, कोई बच्चा आपका, आप खुद नोट करें कि वो चाहता है उसको अप्रिसिएशन बार बार मिले, तो आप उसको अप्रिशिएट करें क्योंकि उससे उसको सेटिस्फेक्शन होती है। और जब आप उसको उसकी टाइप्स की सेटिस्फेक्शन होती है तब वो बहुत हैप्पी फील करता है। यहाँ देख लें, फैक्ट्स है, रूल्स है, लॉजिक है, यहाँ पर रिलेशनशिप और वैल्यूज है। सो नाउ इट्स टाइम टू जज योरसेल्फ, यू आर टी और एफ। Yes, sir, Rizwan. Righty, we are back to the checkbox activity और उसमें हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप ये बताएं कि कौन लोग हैं जो कि टी हैं और कौन एफ। मिस अफरोज आपको पहले ही काफ़ी डिटेल में बता चुकी हैं टी और एफ के बारे में। देन अगेन हमने कुछ बड़े ही स्टार स्टार्टेड पीपल को लिया है। हमारे पास आमिर खान है, अनवर मकसूद, नेल्सन मंडेला एंड वसीम बदामी। सो यू थिंक इज टी एंड हु यू थिंक इज एफ। तो आपने कहना ये है कि जैसे आपने आमिर खान लिखा उसके आगे आप या तो टी लिखोगे या एफ लिखोगे। People are responding, but they're responding for themselves. But we want the answer from there. Mohammad Zakaluddin says Amir Khan जो है वो T है. Sabahat says she's an F. Anwar Maqsood is an F by Sayyida Huma. Mohammad Zakaluddin says Akrus is F. Nazia Taj says Anwar Maqsood is F, and Amir Khan is F by Hamid Khan. Zareen says Nelson Mandela is T. Amreen says Amir Khan is T. And Mohammad Zakaluddin says thinks that Wasim Adami is T. Shakil Riyaz thinks that Amir and Anwar Maqsood is F. And Zareen Nisha says Amir is T, whether Anwar is F. Amri says Anwar Maqsood is T. Noor says I'm both T and F. Noor, we're looking for the answers for that. Right, Wasim Badami is T for Hamid Khan. Right, G. So we're getting these responses. Kawal says Amir Khan is T and Anwar Maqsood is F. Sumaya says Wasim Badami is F. And then we've got Abdul Wahid who says Amir Khan is F. Asma says Amir is T. And then Hamid Khan says Amir Khan is, Anwar Maqsood is T. Right, so we're getting these responses. Miss, आपने देखा ही है कि अनवर मकसूद को काफ़ी लोग टी, कुछ लोग एफ कह रहे हैं। सो एक डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, कोई एक सेट पैटर्न नहीं है हमारे पास। लोगों को एक ही चीज़ को कैटेगराइज करें। व्हाई इज दैट मिस अफरोज?
जी बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि हमने इसीलिए कहा है कि आपने गैस करना है। और देखिए हम में से कोई भी इनको बहुत ज़्यादा नहीं जानता है, क्योंकि जब हम किसी को जानते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम उनके बारे में ज़्यादा अच्छा गैस कर पाते हैं। ये पर्सनैलिटी मैंने इसलिए रखी कि ये ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको हम ज़्यादा देखते हैं। इनको हम सिर्फ जज उनके काम से ही कर सकते हैं, कि जो चीज़ें हमें उनकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होती है उससे हम जज कर सकते हैं कि वो क्या है। तो ये बस आपने गैस करना है। लेकिन इससे पहले आप अपने आप का भी बताइए कि आप टी हैं या एफ हैं। जी सर रिजवान, आप टी हैं या एफ हैं? मिस आप ऐसे मैं तो जो है दोनों तरफ जाना चाहता हूँ। आई डू वांट टू गो इन ईस्ट एंड वेस्ट ऑल्सो, सो हम टी भी रख लेते हैं, एफ भी रख लेते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं। और हमारे पास आंसर है नूर सर बस सॉरी मोहम्मद ज़काउद्दीन says he's T, Anam Zaka says she's F, Mona says she's F, Sumaya says she's sometimes F, and Abdul Wahid says he's T, Shakira says he's T and F both. Hamid Khan is F, Noor Sabas is right. And then Zareen says she's very logical and always follows the rules, and that is why she's F. Uh, Faryal Tabassum is commenting on myself. So she's saying I'm both. Isma says Asma Jahan says she's both T and F. Noor Sabah says Wasim Badalbi is F. Noor Sabah is still thinking about Nadeem Wasim Badami. Let's not talk about that. Then Kaval says he is T. Righty. So thank you very much for your responses, Miss. There are some people who are T, there are Okay. some people who are F, and some people think that they are T and F both. So why do you think, Miss, that this is this case where people are considering them both? Um, they are also thinking that they are logical. They are also thinking that they do feel for people also. So this is the mixture that is coming, right? For Yal, the person say depend on the conditions, sometime T and sometime F. So for Yal, the person depends on situations with what's happening in her life, whether she would become T or she would become F for that. So, Miss, we are getting these responses where people are both T and F also. Why is that people are considering themselves to be both T and F again? लोग अपने आप को टी भी यस कहते यस हैं और यस एफ। दे आर गेटिंग वो टी और एफ को इस वजह से कह रहे हैं कि ऑब्वियसली वो अभी कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये आपको बताऊं कि ये हमें अपने आप को जानना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अपने आप को जानना एक आर्ट है, तो इसलिए यहाँ पर हम जो है वो शायद अपने आप को आप लोग जज करें अपने तमाम जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे कहा ना कि आप सिंस चाइल्डहुड टू टिल नाउ अपने आप को जज करें, अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को जज करें, वहाँ जज करें जहाँ पर आपको टी बनना पड़ा, जहाँ आपको एफ बनना पड़ा, वहाँ पर आपने आपको जज करके देखें कि आप वहाँ पर टी बन रहे थे या एफ बन रहे थे ज़्यादा। क्योंकि देखिए टाइम के साथ भी चीज़ें चेंज होती हैं। कभी आप एफ जो है वो रहे होंगे और अब आपको लग रहा होगा कि अब मैं टी बन गया हूँ। ऐसा होता है, डेवलप होती हैं चीज़ें। लेकिन आपने ये देखना है, मैंने फिर कहा कि आपका प्रेफरेंस कहाँ पर जा रहा है। तो इसलिए यू आर गेटिंग कंफ्यूज ना कि आप टी भी हैं और एफ भी हैं। और ऐसा तो है आपकी पर्सनैलिटी में, हम सब की पर्सनैलिटी में, कि दोनों फैक्टर है। लेकिन कोई ना कोई एक फैक्टर, कोई ना कोई एक प्रेफरेंस होगा जो कि आपका जो है वो डोमिनेंट होगा, और वही आपकी जो है वो टाइप होगी। अगर मैं सपोज आमिर खान की बात करूं तो मैं ये देखूं आमिर खान की उनको सिर्फ उनकी जो फिल्म से मैं जान सकती हूँ कि मुझे उसमें लगता है कि एफ वाला पार्ट मुझे ज़्यादा लगता है कि वो एफ है। ठीक है, तो इट्स योर गेस। आप नेल्सन मंडेला, तो इट्स आपके पास, आपको पता है कि ऑब्वियसली सोशल वर्कर है तो ऑब्वियसली वो एफ हैं। अनवर मकसूद की बात करें तो वो हमें बिल्कुल उसकी राइटिंग से लगता है, एज अ राइटर हम देखते हैं कि वो टी है, अनवर मकसूद टी भी हैं और साथ में आई भी हैं। तो यहाँ तक आपके 3 वर्ड्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, 3 अल्फ़ाबेट्स क्लियर हो गए हैं। आपने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में से एक जज कर लिया है, सेकेंड आपने जो है वो सेंसिंग और इंट्यूशन में से अपने आप को जज कर लिया है। लिखते जाइए। थर्ड वन अपने पेपर में लिख दीजिए कि थर्ड लेटर जो थर्ड अल्फ़ाबेट है वो क्या है, अब वो टी है या एफ है। थर्ड लिखने के बाद फिर हम फोर्थ की तरफ आ जाते हैं। Okay, the fourth and the last one is the life organizing, and we make life organizing by judging and perceiving. मिस, जहाँ तक लाइफ ऑर्गेनाइजिंग की बात है, हमारे पास एक Yes. बड़ा ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया है। सर अब्दुल वहीद कहते हैं कि जी शादी से पहले ही वाज टी एंड नाउ ही इज एफ। ऐसा क्यों?
सर देखिए ये सिचुएशन बना देती है, मतलब कि आपको बनना पड़ा ना शादी के बाद, ये वाली बात है। एफ बनना पड़ा आपको, क्योंकि जाहिर है आप अगर एफ नहीं बनेंगे तो घर में जगह नहीं ऐसी होगी। ऐसी क्या आफतें टूट पड़ी ऐसी कि टी से एफ पे आना। सर ये तो सर पता नहीं, ये तो उनके घर पे पता लगेगा जाके कि सर वहीद के घर पे कि सर ऐसा हुआ क्या आपके राइट साथ जी। कि आपको ठीक पर। अच्छा ऐसा भी होता है सर, अगर अपनी बात कर रहे हैं तो आप ये देखें कि जब एक लड़की भी शादी होके जाती है और अगर वो इंट्रोवर्ट है और अगर वो शादी करके गई है तो उसको जो है ना वो फिर वो मिलता है कि ये बहुत प्राउडी है, ये जो बहू है बहुत प्राउडी है, तो वहाँ पर उसके लिए भी मुसीबत होती है, उसको फिर वहाँ पर ई बनना पड़ता है। तो ये सिचुएशन वेरी करता है, लेकिन जहाँ पर उसको चॉइस मिल जाए वो अलग बैठ जाती है। तो ये चीज़ होती है जहाँ सिचुएशन पे हमें ये बनना पड़ता है, क्योंकि हमें लाइफ तो गुजारनी है अपनी अच्छी। वेरी वेल एक्सप्लेन मिस। जो भी है हमारी तमाम जो सिंपथीज हैं वो सर वहीद के साथ हैं। अब आप बिल्कुल सर। आगे बढ़िएगा विद जजिंग। जी सर, थैंक यू सर। Okay, judging, people prefer to use their judging process in the outer world, like to live in a planned, orderly way, seeking to regulate and manage their lives. Okay, अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जजिंग को आप जजमेंट से नहीं वो लिंक कीजिएगा। जजिंग अलग है, जजमेंट अलग चीज़ है। जजिंग जो है वो टाइप प्रेफरेंस है, ये डायकोटोमी का पार्ट है। Perceiving, people prefer use through their perceiving process in the outer world, like to live in a flexible, spontaneous way. अब इसके हम characteristics भी देख लेते हैं। और organized way होते हैं, इन में रहते हैं, क्या होने जा रहा है वो जानना चाहते हैं, डेडलाइन से पहले चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, अपने प्रोमिसेस पे और प्लान्स पे जो है वो स्टिक रहते हैं। ओके, एंड परसीविंग प्रेफरेंस जो है वो इन स्पॉन्टेनियस वे होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उनमें ज़्यादा होती है, नो डिसाइडिंग, एडवांस में कोई चीज़ डिसाइड नहीं करते हैं और लास्ट मिनट में जो है वो चीज़ें फिनिश कर रहे होते हैं। प्लान्स और प्रोमिसेस जो है वो ओपन टू चेंज होती रहती है। अब यहाँ पर देखें, एक पिक्चर से भी आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा यहाँ पर कि जजेस लाइक्स टू प्लान एंड एक्ट फर्स्ट एक्ट करते हैं, परसीवर लाइक टू एक्सप्लोर एंड रिस्पॉन्ड। ओके, अब नीचे आप देखें कि ये जो ग्लैड दिस इज फिनिश्ड, तो इट मीन्स के ये आपके पास क्या जे है, क्योंकि उसने फिनिश कर लिया पहले। सेकंड में वो जो है वो आराम से बैठा हुआ कह रहा है कि वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तो मैं कर लूँगा, अभी तो बहुत टाइम है। तो ये पी है। तो हम में से बहुत सारे लोग हैं, ये आप इजीली जज कर सकते हैं कि क्या आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज है, क्या आपकी लाइफ शेड्यूल है, क्या आपकी लाइफ प्लान है, क्या आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं, क्या आपका कबर्ड ऑर्गेनाइज रहता है, आप लोगों से ऑर्गेनाइज वे में अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में लेके चलते हैं या नहीं लेके चलते हैं, अपनी चीज़ों को जो है वो टाइम से पहले ख़त्म कर देते हैं। आपको लेसन प्लानिंग करनी है, व्हाटएवर क्लास में जाना है तो आप उससे पहले अपने डेडलाइन से पहले काम कर लें। आपको मीटिंग में जाना है, आप टाइम से पहले पहुंच जाते हैं या टाइम पर पहुंच जाते हैं, जजिंग प्रेफर। ओके, और लेकिन जो परसीविंग होता है वो लेट हो जाता है, ठीक है, लेकिन जजिंग जो है वो स्टिक रहता है। और अगर उसने किसी के लिए मीटिंग प्लान की और अगर कोई लेट आया तो वो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। तो हमें भी समटाइम्स लगता है कि हमें ये लगता है कि कोई अगर जो है वो हमसे नाराज़ हो रहा है या हम पे शाउट कर रहा है, तो लेकिन इसलिए क्योंकि वो जे है, इसीलिए वो इरिटेट हो रहा है। तो ये हमें समझना है कि वो जे है, इसलिए हमें ये काम करके देना है। मेरी क्लास का बच्चा जे है, तो मुझे चाहिए कि जब मैं क्लास में जाऊं तो मैं क्या करूं, आज मुझे क्या क्या करना है मैं बोर्ड में लिख दूं कि ये मेरा कंटेंट है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर अपनी इस वर्कशॉप में सेशन में स्टार्ट में मैंने आपको कंटेंट बताया, क्योंकि मैंने इसको डिज़ाइन करने से पहले तमाम SPTJEI को सोचते हुए किया कि अगर कोई जे है तो वो ये सोचेगा मेरा ये सेशन कहाँ तक जाएगा, मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। बिल्कुल इसी तरह आपकी क्लास का बच्चा भी ये सोचता है कि मुझे इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, मुझे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, मुझे इस टर्म में क्या क्या करना है। तो वो उसके लिए अगर आप वो चीज़ें एक आउटलाइन उसको बता दें तो दे फील रिलैक्स। अच्छा, परसीविंग भी एक एबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं ये इनको आप जो है वो कोई भी चीज़ इनको बता दें कि ये चीज़ ऐसी है, उसके बाद उनके पास जो है वो उसको एक्सप्लोर करते हैं। और आप देख लें कि ज़्यादातर हमारे साइंटिस्ट हैं, आइंस्टाइन है, हमारे न्यूटन है, ये परसीविंग है, क्योंकि इन्होंने एक्सप्लोर किया है चीज़ों को और एक्सप्लोर करके ही चीज़ें हैं, तो तभी तो हमारे सामने ये चीज़ें आई हैं। यहाँ पर आप देख लें कुछ वर्ड्स सेम, यहाँ पर कुछ यहाँ कीवर्ड्स मैंने जो है वो शेयर किया है यहाँ पर कि डिसीजन, शेड्यूल, प्लान, कंट्रोल अच्छा करते हैं, अभी करते हैं, जो करना है अभी करना है।
पी के पास ऑप्शंस होते हैं, वो कहते हैं अभी हम कर लेंगे, इतना ऑर्गेनाइज नहीं होता है। आप अगर आप उनका कबर्ड चेक करें तो वो इतना अच्छा नहीं होता, अगर आप घर पे भी देखें तो वो इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। आपके घर पे आप देखे होंगे किसी को ग्रोसरी लानी है, कुछ भी है, तो वो कहेंगे ठीक है अभी बहुत टाइम है मैं कर लूंगा, ठीक है, कुकिंग करनी है अभी बहुत टाइम है मैं कर लूंगी, लेकिन जो जे होगा वो पहले करके रख लेगा। तो ये और जे और पी में आपके पास डिफरेंस है, जो आप देख सकते हैं कि आप जो है वो इसमें से क्या समझते हैं। आप देखें ये डिसीजन लेते हैं। अच्छा, जो पी होता है वो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा गैदर करते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लोर करते हैं इसलिए वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सपोज अगर मैं उनको कोई भी टॉपिक पढ़ा रही होंगी तो वो जे वाला बच्चा कहेगा हाँ ठीक है ये है, ठीक है। अगर मैं उनसे कहूँगी ये फोर्स है, अब इस फोर्स ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है, तो वो जो पी वाला बच्चा है वो आपके उस वहाँ से उसकी थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर वो सोचता रहेगा कि मैं इसको कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, मुझे ये फोर्स कहाँ कहाँ नजर आ रही है। वो वहाँ एक्सप्लोरिंग, जो परसीविंग बच्चा है वो ये जज कर रहा होगा। तो आप जज करें आपकी क्लास में अपने एज अ पेरेंट अपने बच्चों में कि वो कहाँ जे है कौन पी है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ करूँगी, अगर कोई जे नहीं है, सपोज वो पी है, तो हम ये ना कहें कि ठीक है इसका बैग ऑर्गेनाइज रहेगा ही नहीं, इसने काम ऑर्गेनाइज करना नहीं है, आप उसको सिखाएं। लेकिन जब हम ये जान जाएंगे तो हम इरिटेट नहीं होंगे, हम ये कहेंगे अरे ये जे है इस वजह से ये इस तरह कर रहा है। अब आप देखें आपको यहाँ नजर आ रहा है, आप ये क्या समझते हैं कि ये है या पी? जी हमारे पास आंसर्स अभी पोर इन होंगे और पूछा ही गया है कि जी ये जो आपके सामने है, आपको क्या लगता है कि जी ये जे की कैटेगरी में आ रहा है या पी की कैटेगरी में? वी गेटिंग द आंसर, हामिद खान says it's J, Shakil Riaz says it's J, and then Mohammad Zakauddin says he's J, right? यानी कि वो J है. Zora says she's P, Nazita says J. And then Sumaya Fazul says it's judging, right? Isma says it's J. Abdul Wahid says J. Right, तो ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि जी ये इमेज जो है वो J है, right? और उन्होंने थोड़ा सा अपने बारे में बताया. राइट जी, जो इमेज है आपके सामने इसके बारे में आपने बताना है कि वेदर दिस इज जे और पी. राइट जी, वी स्टार्टिंग टू गेट the answers. But either says he's J, but then Noor Sabah has answered that ye binda bhi J hai. This image is J. So what we're looking for is your answers regarding this image. Sabah says ye J hai. Faryada Basum is also agreeing with it. She says it's J. Zora nahi with same answer. Saira Ahmed, she's J, right? Kaval says it's J. Shakir Riaz, Amreen, and then Zareen says it's J. तो ज़्यादा लोग में से ये कह रहे हैं कि ये J है, and I think they're right. Yes, yes. We're very thankful for your responses, and then आपके पास एक और जो है इमेज आ चुका है और मिस अफरोज इसका भी हमने पूछना होगा कि ये J है या P. Yes. राइट जी, सो प्लीज रिस्पॉन्ड कि ये जो आपके पास इमेज है इस वक्त जिसमें लिखा हुआ है यस 5 PM डेडलाइन जस्ट फिनिश, ये आपको क्या लगता है कि कौन सी कैटेगरी में आता है? हामिद खान हैज रिस्पॉन्डेड, ही सेज दैट दिस इज पी, राइट? And there comes Kaval, she says P, Sabat says P, Sumaya says it's again it's P. So most of the people are saying that's P. Mohammad Zakauddin has also responded in a similar way. Nazia Taj has also responded in a similar way. And then Ismat also says this is P. So most of the people are going with P. Thank you very much for your responses. ओके, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके पास भी है क्योंकि डेडलाइन एंड टाइम तक जो है वो इन्होंने काम किया है और काम करके फिर ये खुश हैं. ओके, अच्छा, यहाँ पर ग्रेट वर्क टाइम टू, यहाँ पर भी आप देख लेंगे डेडलाइन हैज़ बीन पुश्ड बैक, ग्रेट, मोर टाइम टू वर्क ऑन इट, ठीक है. तो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है कि इट्स आल्सो पी. ओके, नाउ इट्स टाइम कि यहाँ पर अब आपने अपने आप को जज करना है, यू आर जे और पी. ओके, अब यहाँ पर आपके 4 लेटर वर्ड्स बन चुके होंगे
ई और आई में आपने एक डिसाइड किया होगा कि आप ई हैं या आई हैं. सेंसिंग और इंट्यूशन में आपने डिसाइड किया होगा आप एस हैं या एन हैं. द थर्ड वन द थिंकिंग और फीलिंग में आपने डिसाइड किया होगा कि आप टी हैं या एफ हैं. एंड द लास्ट वर्ड जो है वो आपके पास जजिंग एंड परसीविंग में आपने डिसाइड कर लिया होगा कि यू आर जे और पी. और उसके बाद जो 4 लेटर वर्ड्स हैं ये वो आपकी टाइप बन जाएगी और वो टाइप है दिस इज माई टाइप INFP. सो व्हाट्स योर टाइप? जी बिल्कुल, जैसे मिस अफरोज ने कहा कि अब आपने अपनी बतानी है टाइप, और इस दफ़ा आपके पास सिर्फ एक लेटर नहीं है बल्कि हमारी तरफ से लूट सेल है. यू कैन हैव 4 letters for you and you can use those 4 letters to describe your type. So we're looking for your answers in Forez and Zora Dizab says ENFP. That's very interesting. Bini Shahmed says it's ISFJ. Righty. Sumaya Fayal says I'm J and I'm P, right? It's not the 4 letter that we're looking for. We'd like more people to, give their answers. Yes, Hamid Khan says he's ISFP, and Tasneema Siddiqui says he's INTFJ. So she's gone with the 5 letters. Nadia Das says ENFJ. Shakil Riaz is ISFP. And this sounds like it's some kind of a degree or something like that. Saima Azad says she's INTJ, right? And then Saira Ahmed says she's ISTJ. Mohammed Zakauddin says ENTJ, right? So many people responding. Sabat says he's INFJ. And then Shumaila Wakas says she's ENFJ. So Kamal Karachi, she says ESTJ. Isma says she's PNJ. So Isma has only taken 2 letters. So we have this, different combination here. Miss, why is that कि हमारे पास different combinations आ रहे हैं? कोई ESTJ है, कोई ISTFJ है. Similar इतनी combination क्यों नहीं है? हाँ, सिमिलर नहीं हो सकती क्योंकि हमने यहाँ पर बताया है कि 16 पर्सनैलिटीज टाइप हैं और वो इस 4 डायकोटमीज से है वो 16 पर्सनैलिटीज बनेंगी और पूरे वर्ल्ड में जितने लोग मौजूद हैं उनकी 16 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी है. अब आपने अपना डिस्कस किया, अगर किसी को लगता है कि वो टी है और या जे है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपको जे हमें बनना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जहाँ हम कंफर्टेबल है वहाँ पर वो आपका पी है. Okay, so these are the 16 types of personality. यहाँ पर आप अपने आप को देख सकते हैं कि E और I में से आपने क्या सेलेक्ट किया है और S और N में क्या किया है, T और F में क्या है, J और P में. तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जिसकी बेस पे आपने अपनी पर्सनैलिटी टाइप को जज किया है और ये जज करना बहुत ही मुश्किल काम था जो कि थोड़ी सी कोशिश यहाँ पर जो हमने की है जिसमें आप अपने आप को जान सकते हैं. सपोज सर मुझे अगर आप किसी का बताएं, किसी ने अगर कोई शेयर किया है अपनी टाइप को जी, तो हम उसके बारे में. हमारे पास नूर सबा ने कहा था शी इज ISFJ. सो मिस अगर ISFJ को आप बता दें. यस ISFJ जो सबा ने कहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि जिसमें लिखा है वॉर में कंसिडरेट होते हैं, जेंटल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल बहुत अच्छे होते हैं, प्रैग्मेटिक होते हैं, थ्रो डिवोटेड जो है वो केयर टेकर्स होते हैं, एंजॉय बीइंग हेल्पफुल टू अदर्स. ठीक है, देखिए इसके अलावा आप खुद दे सकते हैं कि इफ ISFJ जो है वो सबा की टाइप है तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स वो I की है वो सबा की है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो S की है वो सबा की है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स F की है वो भी सबा की है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स J की है वो सबा की है. तो ये कॉम्बिनेशन है जो कि आपकी टाइप हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें भी आपके पास कुछ कीवर्ड्स हैं जिसमें आप अपनी पर्सनैलिटीज के लिहाज से, अपनी टाइप के लिहाज से अपने कैरेक्टरिस्टिक्स अपने देख सकते हैं. तो यहाँ पर जो जिसने अपनी अपनी टाइप जो है वो जज की है तो यहाँ पर वो देख सकता है क्या है. एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, जो चीज यहाँ नहीं लिखी हुई है, जो चीज आप यहाँ नहीं देख रहे हैं, अगर आप इसके फर्स्ट कॉलम में देखें, जो फर्स्ट कॉलम हमारा जो है वो अप टू डाउन जा रहा है. इसका 2 लेटर वर्ड जो आपके इसके मिड के 2 वर्ड्स, अगर आप 2 लेटर आप ये देखें कि ST, 2 ये जो अल्फाबेट है मिड के ST, ये आपके पास कॉमन है फर्स्ट कॉलम में. तो इसके स्किल्स भी कॉमन है,
इनके बारे में कहा जाता है, चूंकि ये MBTI आपके पास है, मायर ब्रेक्स टाइप इंडिकेटर, ठीक है, ये मायर ब्रेक्स टाइप इंडिकेटर है जिन्होंने ये आपके पास जो है इस चीज़ को, इस पर्सनैलिटीज़ को डेवलप किया है और ये डिस्कवर करके ये चीज़ें जो है यहाँ पर हमारे सामने जो नज़र आ रही हैं, तो अकॉर्डिंग दैम के जो ST है, दे आर मोस्टली मैन, ओके, एंड दे वर्क मशीन, दे वर्क इन मशीन, वो मोस्टली आप समझ लें इंजीनियर होते हैं या मैकेनिकल वर्क ज्यादा करते हैं, जो ST वाले लोग होते हैं। अच्छा, सेकंड कॉलम अगर मैं आपको देखूं तो मैं आपको बताऊं कि जो आप देखें इसका मिड का जो आपके पास जो अल्फाबेट है SF, ये ऊपर से नीचे आपको कॉमन नजर आ रहा होगा। जो SF है वो 80% दे आर वुमेन, ओके, एंड 80% वुमेन होती हैं एंड दे लाइक टू हेल्प अदर्स, उनको अच्छा लगता है, वो अपना घर बहुत अच्छा रन करती हैं, तो ये ज्यादातर वुमेन होती हैं, ठीक है। थर्ड में अगर मैं कहूँ NF, ओके, जो NF आपके पास है थर्ड में, जो आपको कॉमन नजर आ रहा है पार्ट, जो NF वाले लोग होते हैं इनके पास आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ये फिलोसफर बहुत अच्छे होते हैं, जितने हमारे पास फिलोसफर हैं आपके पास, इब्न खल्दून है, सुकरात है, बुकरात है, आप देखिए उन सब में ये वाली जो है वो टाइप मौजूद है। अच्छा, लास्ट NT वाला जो पार्ट है, जो लास्ट कॉलम है, ये बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं, एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे होते हैं। तो अब आपने ये देखना है कि आप इसमें से क्या है और आपने अपने आप को क्या जज कर लिया है यहाँ पर। और इसके साथ जो MBTI ने, जो मायर ब्रेक्स ने, इसके साथ एक आपके जो है ऑक्यूपेशन उनके लिहाज से उन्होंने सेलेक्ट किया है कि ये बेस्ट ऑक्यूपेशन है जो उनके लिए बेस्ट रहेगा उनके करियर के लिए, कि जो ENFJ वाले जो होंगे, जो टाइप होगी, वो टीचर बहुत बेस्ट हो सकते हैं। सपोज INFP वाले जो है वो हीलर बहुत अच्छे होते हैं, मीन्स कि वो अच्छा सोशल वर्कर बन सकते हैं। INTP वाले जो है वो आर्किटेक्ट अच्छा बन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी दूसरी टाइप होगी तो हम वहाँ अच्छा नहीं कर सकते, चीज़ें डेवलप होती हैं, हमें अपनी चीज़ों को, अपनी टाइप को डेवलप करना पड़ता है और डेवलप करके हम वहाँ पर फॉल कर सकते हैं, ओके। अच्छा, जो लास्ट वन है हमारे पास, ये फंक्शंस जो मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर फंक्शंस आपको नजर आ रहे होंगे कि सपोज सर रिजवान आप मुझे किसी की टाइप बताएंगे ताकि मैं उसको लेकर यहाँ जी पर मैं मिस इसको नफीसा एक्सप्लेन कर मेहदी दूँ। ने अभी मैं भेजी अपनी टाइप, शी सेज शी इज INFP। सो INFP जो है वो आप बता दें मिस नफीसा को कि क्या उससे बनता है। ओके ओके, अब मिस नफीसा की जो टाइप है, पर्सनैलिटी टाइप, वो है INFP। सो INFP में आप देख सकते हैं द फर्स्ट हमारा डोमिनेंट पार्ट है वो F है, मीन्स के उनका जो फीलिंग पार्ट है वो डोमिनेंट रहेगा, ये आपका 20 इयर्स तक डोमिनेंट रहता है। देन आफ्टर 20 इयर्स जो आपका सेकंड आ जाता है वो ऑक्सिलरी पार्ट हो जाता है, जो कि N है। इंट्यूशन पार्ट आपका ज़्यादा रहेगा, आप इंट्यूटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप आपके आइडियाज़ जो है वो इमेजिनरी दुनिया में रहेंगे, सिक्स सेंस बहुत अच्छा रहेगा आपका, आप फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाएंगे आफ्टर 20 इयर्स। द थर्ड वन पार्ट इज द टर्शरी, सेंसिंग वाला पार्ट जो है वो आपका सबसे आपका टर्शरी है, जो कि आफ्टर 40 इयर्स जो है वो डोमिनेंट होता है। ये सेंसिंग जिसमें आप जो है वो आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप वहाँ पर फैक्ट्स को देखते हैं। लास्ट जो है वो लीस्ट प्रेफर जो होता है, जो कि आफ्टर आपके पास एक 20 इयर्स के बाद आ रहा है, एक 40, उसके बाद 60 इयर्स के बाद जो है वो T आपका डोमिनेंट हो जाएगा। तो ये आपका फंक्शन होता है जो थ्रू आउट लाइफ आपकी जो है वो रहती है। तो लेकिन उससे पहले तो आपको यहाँ पर ये जज करना पड़ेगा कि आपकी अपनी टाइप क्या है, आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। जब आप अपनी टाइप को जान लेंगे तो आप अपना फंक्शन भी देख सकते हैं कि आपका डोमिनेंट जो पार्ट है वो आपकी लाइफ में कौन सा डोमिनेंट पार्ट रहेगा। तो ये आपने अपने आप को देखना है, जज करना है और उसके बाद उसको डेवलप करना है। उसको हमने मिसयूज नहीं करना है इन चीज़ों को, हमने किसी को जज करके ही नहीं कहना है कि आप यही हैं, हमने सिर्फ गेस करना है और गेस करके हमने उसकी चीज़, हमने उसको जो है वो तरीके से उसका उसके साथ कम्युनिकेशन है, एज अ टीचर आप उनको टीच कर रहे हैं, हमने उसी तरीके से जो है वो लेके चलने अपनी लाइफ में। तो ये फंक्शंस है, आप अपने अपने फंक्शंस यहाँ पर देख लीजिए कि आपका फंक्शन कहाँ लाई करता है और आपकी लाइफ में आपका डोमिनेंट पार्ट क्या है। अच्छा, अगर सपोज मैं यहाँ पूछूं कि अगर आपको पैसा कमाना है ज़्यादा, तो आपका डोमिनेंट पार्ट कौन सा होना चाहिए? Right, geez, Miss Frost wants to know, okay, what is going to be the dominant part if you want to make a lot of money? Hamid Khan has responded. He says T. T आपका dominant होना चाहिए if you want to make a lot of money. And then Zareen Shah says it's T.
right? Shumaila also agrees with her. Then you got Sumaya was still thinking. Nadia says T, and then Zoran seems it's N and J. So this is a different answer. Kamal Sabat says it's T. So most Ismat also says T. So most of the people are saying miss that it is T. Huma like also goes with T. Asma Basit says it's T. Right. दे आर राइट. हमारा टी जो है वो डोमिनेंट होगा. तो आप देखें जितने अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप देखें वो टी हैं. उनका जो डोमिनेंट बिल गेट्स जो हैं वो टी हैं. अच्छे इसके अलावा हमारे पास अपने स्टूडेंट्स को जज करें और आप देखें कि आप यहाँ पर किस तरीके से आप जज कर सकते हैं. और जब हम जज करेंगे तो उसके बाद हम इरिटेट नहीं होंगे. और आपकी क्लास में इंट्रोवर्ट बच्चा बैठा हुआ है, खामोश बैठा हुआ है, तो आप वहाँ पर ये देखें कि आप वहाँ पर आप ये सोच समझ जाएं कि वो इंट्रोवर्ट है, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसीलिए वो को-करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो क्लास में अपने आइडियाज शेयर नहीं कर रहे हैं. तो उनके लिए आप क्या करें, उनको लिखने के लिए दे दें. ठीक है, आप लिख के बताओ. ओके, तो इस तरीके से हमने जो है वो जान के उनको अपनी लर्निंग स्टाइल को बेटर करना है. सो लास्ट वन मुझे आप ये बता दें कि इसमें आपको क्या नजर आता है, विच वन इज यूनिक. Right, जी. So Miss Froz wants to know कि जो आपके पास letters हैं इनमें से आपको कौन सा unique लगता है. So please type in your answer. Which one do you think is unique, right? जी. That's what we're looking for. Is the answer. Ms. Zora wants to ask a question. Ms. Zora, we are going to take the questions in the last, so please, please wait for that. But before that, please answer this one. Which is unique, righty? Hamid Khan has responded. First, he says why, and then Hina Sauda is why. Asma is also saying why, and then Miss. Tasneema says, why Sabahat agrees. Saira Hamid has come up with a different one. She says, G. And then Beanish says it's why. Zareen has also gone with I. Zohra has gone with G, right? So we have got 2G. Ismat also goes with Y. So Miss Y, हमारे पास ज़्यादा है. And then you have got a couple of people saying it's G. So is there any reason to choose Y? Yes, why have you chosen Y? That's what Miss wants to know. Why? If anyone can respond to that, why have you chosen Y? That would give us, a better understanding of your choice. Right, Hira Pracha has also gone with Y. Hamid Khan responds. He says without any reason. Right, so this was just one of the flukes. We're looking for your responses. Yes, Faryal sir says, ये वाला portion repeat कर दें. Sorry, Miss Faryal, we can't do that. Hina Savda says, it's a gap from A, B, and then G. And then Asmabad says it's because formation is different. Inish Ahmed says according to writing style. Shakilia says क्योंकि इसके words बहुत कम देखे हैं. Right, so Shakilia should be using English. खैर. Noor says Y comes in last. Right, तो ये जो ज़्यादातर students हैं, sorry, ये जो letters हैं शुरू में, and this one is in the last. And then Kamal says every letter is unique. Wow, that's very inspiring. Right. Yes. This thing I want to know कि every letter is unique. Why Y is unique? ठीक है, हमने इसकी फॉर्मेशन से यूनिकनेस नहीं देखनी. All are the alphabets ना, all are the alphabets. That's why all are unique. बिल्कुल इसी तरीके से we all are humans. We all are unique. Students, all our students are same. So it means कि they are all same. The all childrens, your friends, they all are unique. सब यूनिक है. यहाँ पर मुझे सिर्फ यही बात बतानी है आपको एंड में कि सब यूनिक हैं. हमने सिर्फ उनकी स्किल्स को, उनकी टाइप
को जानते हुए देखना है कि उनकी स्किल्स क्या होंगी, और उनकी स्किल्स को जानने से पहले आपने उनकी टाइप को जानना है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा अगर सेंसिंग है तो ऑब्वियसली उसमें इंट्यूशन वाला पार्ट नहीं है, तो सेंसिंग की उसके पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें यूनिक है। अगर कोई परसीविंग एक्सप्लोर बहुत अच्छा कर रहा है तो वो उसकी एबिलिटी है, वो उसमें उसकी यूनिकनेस है। अगर बी एग्जिस्ट नहीं करें हमारे पास, तो साइंटिस्ट जो है वो हमें इतनी चीज़ें इन्वेंट होके ना मिले, वो एक्सप्लोर ना करें चीज़ों के। हम अभी लैपटॉप में और मोबाइल में यहाँ पर अभी जो है वो ऑनलाइन सेशन नहीं कर रहे होते हैं अगर बी मौजूद नहीं होते हैं, अगर सिर्फ जे मौजूद होते हैं। तो इसलिए हर एक की अपनी अपनी एक प्लेस है, और उसकी अपनी प्लेस हमें खुद जानी है कि वो क्या है और कहाँ पर उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हर कोई यूनिक है। और ये जो MBTI जो मायर ब्रेक्स है और जो योंग ने जो आप ये थ्योरी दी, साइकोलॉजिस्ट जो था जिसने टाइप की थ्योरी दी और उसको मदर एंड डॉटर ने इसको एक्सपेंड किया, उसका मकसद यही था कि आप अपनी लाइफ को हेल्दी और हैप्पी बनाएं। इसीलिए लोगों को जान के, ताकि आप उनसे कम्युनिकेशन में आसानी हो। और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया में और USA में जो है वो आपके पास मैरी और एलिजबेथ जो है वो आपके पास ये 2 वुमेन है, ये भी काम कर रही हैं जो ITD ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ टाइप डेवलपमेंट में। और वहाँ पर वो एलिजबेथ की जो आपके पास है ये ऑथर है, शी इज़ द ऑथर ऑफ द डेवलपिंग चाइल्ड। और वहाँ पर डेवलपिंग चाइल्ड पे जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, इस टाइप पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उन कंट्रीज़ में काम हो रहा है। इसीलिए ताकि हम बच्चों को अच्छी तरह जान के उनको अच्छी तरह डेवलप कर सकें, हम एज अ टीचर अपना लर्निंग स्टाइल इस तरह बनाएं कि बच्चों तक हमारी चीज़ें अच्छी तरह कन्वे हो सके। सो दिस इज थैंक यू फ्रॉम माय साइड। सो ओवर टू सर Rizwan. Yes, and we are now to that part where we are going to ask questions, right? So Ms. Zora wanted to ask questions, so let's have some questions. If you have any concern or you want to know something or you want us to repeat something, please do ask. Yes, Zora had this question, Miss Afros, that why the businessmen are T. So I'm going to repeat that for you. Why do you think she wants to know why the businessmen men are T? यस यस सर, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी डिस्कस की, जो कि एक थ्योरी जो भी मायर ब्रेक्स के और योंग की आई, तो अकॉर्डिंग टू टी, जो टी आपके पास है, जो थिंकिंग वाला जो पार्ट है, तो उसमें ये कहा गया है कि जो टी लोग होते हैं वो लॉजिक को ज़्यादा देखते हैं, काउज एंड फैक्ट को ज़्यादा देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को ज़्यादा देखते हैं। क्योंकि जब ये टी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स टी की हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस को जो ज़्यादा देखेगा तो वो बिजनेसमैन ज़्यादा अच्छा होगा। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी, कोई शॉप खोल ले और वो प्रॉफिट लॉस को सोचे बगैर, वो प्लानिंग किए बगैर, वो लॉजिक देखे बगैर अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले, तो वो पैसा कैसे कमा सकता है, वो अच्छा बिजनेसमैन कैसे बन सकता है। तो ये टी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लाई करती है, जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। जबकि इसके बिल्कुल ही अपोजिट मैं एफ की बात करूं, तो एफ चाहता है वो लोगों की मदद करे, वो लोगों की हेल्प करे। जब वो हर वक्त लोगों की हेल्प करेगा तो वो पैसा कैसे कमाएगा, वो बिजनेसमैन अच्छा कैसे बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपनी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। अगर आप एफ हैं तो आप अपने अंदर चीज़ें डेवलप करें, आप टी की चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, और डेवलप करके आप अपने आप को बिजनेसमैन भी बना सकते हैं। लेकिन ये एक आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है जो यहाँ लाई करती है। जी सर। अच्छा जी, मैं इसके बाद मिस सायरा का सवाल है कि शी वांट्स टू नो कि कोई ऐसा मेथड है, इज देयर एनी मेथड कि हम क्विकली जो है वो एक चाइल्ड की पर्सनालिटी जो है वो पता करें। हाँ, व्हाट इज द यू नो अ क्विक मेथड इन नोइंग द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड? दैट्स अ क्वेश्चन। ओके सर, क्विक मेथड नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट पे MBTI का एक क्विक इंटरनेट जो है वो चेक होता है, जिसमें आप जो है वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन डालेंगे और आपकी टाइप आ जाएगी। लेकिन वो आपके पास राइट जजमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो आपको 1 और 2 क्वेश्चन है। आप कैसे किसी को जान सकते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन से? आप किसी को क्या वन टाइम एक दफ़ा देखकर, या आपको किसी के बारे में ना पता हो, आप किस तरीके से इंटरनेट आपको बता सकता है कि ये आपकी टाइप है? तो क्विक मेथड इंटरनेट ने बताया है, लेकिन दैट इज़ नॉट ऑथेंटिकल। आपने जो है वो इतना ऑथेंटिकल नहीं है जिससे आप जज करें टाइप को किसी भी बच्चे की।
आपने जज इसी तरह करना है जो वे मैंने बताया है आपको, कि क्योंकि इस जो MBTI ये जो आपके पास टाइप है, इस टाइप में बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है। यहाँ तो हमने सिर्फ टाइप को सिर्फ जज किया है कि टाइप क्या है, इसमें फंक्शंस बहुत डिटेल में है। इसमें हम लर्निंग स्टाइल हमने पढ़ा है कि वो जो है वो कौन कौन से लर्निंग स्टाइल है एज अ टीचर जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं कि हर टाइप के बच्चे को समझा सके। तो आपने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने माइंड में रखते हुए आपने उस बच्चे को जज करना है। दैट इज नॉट क्विक। ओके। Righty. So Hamid has a question. He says that in this session we've talked about personality style, but he wants to know, okay, can you tell us about the learning style also? कि क्या हम learning styles भी judge कर सकते हैं through this? Uh, जी, Miss Afroz. जी जी बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें आपने पहले टाइप जाननी है, क्योंकि जब तक हम टाइप नहीं जानेंगे फिर उसका लर्निंग स्टाइल नहीं जान पाएंगे। सपोज मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर आपसे शेयर भी की कि सपोज एक इंट्रोवर्ट बच्चा है तो उसका लर्निंग स्टाइल ये होता है कि वो लिख के जो है वो ज़्यादा अच्छा सीख रहा होता है। इंट्यूशन वाला बच्चा जो है उनको उसको उसको वाई क्वेश्चन चाहिए होता है। जो एस वाला बच्चा है उसको प्रैक्टिकल करके देखना है। तो ये लर्निंग स्टाइल है उनका, ये लर्न करने का उनका तरीका है कि वो अगर ये चीज़ें होंगी तो वो उस तरीके से लर्न करेंगे। उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा लर्न करेंगे। ये लर्निंग स्टाइल को हमारे पास देते हुए हर चीज़ हम डिस्कस कर सकते नहीं किया है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ आपकी टाइप डिस्कस की और साथ साथ मैंने आपको बताया कि वो लर्निंग स्टाइल उनका क्या होगा। ये चीज़ उनको मिलेगी तो लर्निंग, अगर वो चाहता है वो बच्चा अपने आप को बुक में ही लेकर बैठे और वो बुक ज़्यादा रीड करे तो वो इंट्रोवर्ट है इसीलिए। Right, G. Thank you very much, Mr. Froze, and thank you very much, everyone, for your kind comments and your questions. But because of we don't have a lot of time, so what we are going towards is the closure. Right? And let me tell you, we will wait for you also in the next upcoming workshop that we have, and this would be delivered by Bacha himself, right? Lalde Bacha would be, telling you about the computer technology, right? It's going to be a it's going to be a free web-based teaching and learning platform for you. Now, before we end, there is going to be a questionnaire that is going to be sent to you. A link would be sent to you on your WhatsApp. What you are going to do is you're going to click there, and you will on your screen would appear a Google form. You have to fill that form and you have to turn it in. Please do that because this is very important. If you will not turn it in, your certificate, we will not be able to give you your certificate. So please, you can check your WhatsApp. You've sent the link, click on that, and then you'll go get your Google form. Please fill that, turn it in, and we'll have your details, and then we'll send you your e-certificates, righty? So on 26 September 2020, we'll have our next workshop on free web-based teaching and learning platforms by Lalze Pacha. Looking forward to that. Thank you very much. You've been a lovely audience. And we'd like to thank a few people in the last, right? First of all, Sir Faisal Abdullah, who's the head of the digital learning department, who's leading all this. And we do have our IT team. Your next trainer, Nalze Bacha, who's on IT facility. So thanks, everyone. And until next time, it's Allah Hafiz.